Hello everyone. I hope all of you are doing good. प्रिपरेशन आप सबका अच्छा चल रहा होगा, ठीक है. So if you have observed on a daily basis, I am sharing one set somewhere in the morning, afternoon, और रात को उसको आपको solution मिल जाता है, right? So this will continue, and I'll try to give my best. I'll try to do that on a regular basis, ठीक है. So ठीक है. So if you have not yet subscribed to the channel, please do subscribe to the channel so that you get a regular information about जो भी चल रहा है यहाँ पे, right? And just for your information, on June 21st, I'll be taking up a session, right? It's free for everyone. I'll be taking up a session on quant-based LR. You know, quant-based LR is a very क्या बोलते हैं, favorite topic of CAT in the last few years. तो quant-based LR का एक सेशन रहेगा June 21st, that is in the timing of 9 to 10:30 PM. ठीक है, रात को 9 से 10:30, quant-based LR June 21st. I'll be sharing the group WhatsApp group link in the comment of this video. आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर जाना, क्योंकि क्लास के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं उस ग्रुप में ही पोस्ट करने वाला हूं, ठीक है. एंड ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द सेट. 6 students, Neha, Rahul, Simran, Kunal, Isa and Tarun, appeared for their school's subject-wise assessments in 4 subjects: physics, chemistry, maths and biology. Each student received a unique rank from 1 to 6 in every subject, meaning no 2 students had the same rank in a subject and no student had the same rank in any 2 subject. मतलब क्या है इसका? For example, what we have physics, chemistry, maths, bio, ठीक है, and we have ranks 1 2 3 4 5 6. तो इसका बोलना क्या ये मतलब है, no 2 student had the same rank in a subject. तो in physics तो 6 students 6 unique ranks. कोई भी 2 स्टूडेंट को हम रैंक 1 या फिर कोई भी 2 स्टूडेंट को हम रैंक 2 ऐसा नहीं दे सकते हैं. 6 स्टूडेंट 6 यूनिक रैंक्स, ठीक है. और उसके बाद क्या बोल रहा है, नो स्टूडेंट हैड द सेम रैंक इन एनी 2 सब्जेक्ट, राइट. सपोज अ स्टूडेंट, लेट्स से नेहा गेट्स रैंक 1 इन फिजिक्स, नेहा गेट्स रैंक 1 इन फिजिक्स. तो अगेन नेहा कैन नॉट गेट रैंक 1 इन केमिस्ट्री, कैन नॉट गेट रैंक 1 इन मैथ्स, कैन नॉट गेट रैंक 1 इन बायोलॉजी. तो कोई भी स्टूडेंट को कोई भी 2 सब्जेक्ट में सेम रैंक नहीं आ सकता. So can I say, if I draw a matrix, if I get up my final table, something like this, for each subject you have your ranks over here. So can I say कि in a subject all the students are unique, right? As well as for any rank, let's say first rank, all these 4 students are going to be unique. They are going to be different, right? So row wise unique names as well as column wise unique names. So what format is this? Can I say this format is the Sudoku format? अगर कोई डेली बेसिस पे सुडोकू कर रहा है ना, ये सेट बहुत ही आसान है. ये सेट बहुत ही आपको आसान लगेगा. मैंने 8 मिनट का टाइम लिमिट दिया था. आई थिंक यू कैन कंप्लीट इट विद इन 5 to 6 minutes if you are on a regular basis doing Sudoku and if you write down the conditions properly. ठीक है, ओके, चलो लेट्स प्रोसीड. हाँ, और एक चीज, दिस प्रेजेंटेशन is here I have kept the ranking constant. मैंने ranks को constant रखा है. I know many of you would have solved by keeping the names constant. That is Neha, Rahul, Simran, आपने constant रखा होगा, subject constant रखा होगा और अंदर आप rank निकाले होगे, right? Solve हो जाएगा उस process में भी, but the time consumption in that process will be slightly more than this process. Whenever it's a ranking or comparison, I prefer to keep ranking or the comparison parameter constant. ठीक है, तो मेरे रैंक्स यहाँ पे कांस्टेंट है. कौन से रैंक पे कौन बंदा आता है उसको हम वेरी करेंगे, ठीक है. सो व्हाट आर द नेम्स वी आर गोइंग टू हैव? द नेम्स आर नेहा, एन, राहुल, सिमरन, कुणाल, ईसा एंड तरुण. दीज आर आवर नेम्स. फाइन, चलो लेट्स हैव द फर्स्ट कंडीशन. Neha did not secure either first or second rank in any subject. So Neha did not secure first or second rank in any subject. Rahul secured ranks only from first, fourth, fifth or sixth.
अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट। अच्छा, राहुल को फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ आ सकता है, सेकंड, थर्ड नहीं आ सकता, तो राहुल कैन नॉट गेट सेकंड रैंक, राहुल कैन नॉट गेट थर्ड रैंक। ओके, सिमरन डिड नॉट सिक्योर ईदर थर्ड और फोर्थ रैंक इन एनी सब्जेक्ट, तो सिमरन डिड नॉट सिक्योर थर्ड और फोर्थ रैंक इन एनी सब्जेक्ट। Kunal secured ranks only from first, second, third और sixth across all subjects. अच्छा, कुणाल secured ranks only first, second, third और sixth, मतलब कुणाल को फोर्थ और फिफ्थ नहीं आ सकता। ठीक है, ओके। ईसा डिड नॉट सिक्योर ईदर फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक इन एनी सब्जेक्ट, तो ईसा को किसी भी सब्जेक्ट में फिफ्थ या सिक्स्थ नहीं आया है। ठीक है, देन तरुण सिक्योर्ड रैंक्स ओनली फ्रॉम सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट, तरुण को सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ ही आ सकता है, दैट मींस तरुण को फर्स्ट और सिक्स्थ नहीं आ सकता। ओके, देन कंडीशन 7, इन द 4 सब्जेक्ट्स सिमरन फर्स्ट इन फिजिक्स, अच्छा कुणाल सेकंड इन केमिस्ट्री, तरुण, तो चारों सब्जेक्ट का एक एक रैंक का हमें दिया हुआ है, तो हु इज एट दैट पोजीशन, तो सिमरन फर्स्ट इन फिजिक्स, Kunal second in chemistry, Tarun third in mathematics, Isa fourth in biology. Okay, done. Last condition, Rahul and Neha were ranked 6th in mathematics and biology respectively. That means Rahul was ranked 6th in mathematics, Neha was ranked 6th in biology. So Rahul 6th in mathematics, Neha 6th in biology. ठीक है, ओके फाइन। नाउ इफ यू ऑब्जर्व द सिक्स्थ पोजीशन, ऑब्जर्व द सिक्स्थ पोजीशन, राहुल और नेहा तो आ चुके हैं, सिक्स्थ पोजीशन हमें सिर्फ फोकस करना है, तो वी नो दैट ऑल द फोर पोजीशन आर गोइंग टू बी यूनिक स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था, सिक्स्थ पोजीशन में सारे चारों यूनिक बंदे होने चाहिए। ठीक है, कोई भी दिस कंडीशन, नो स्टूडेंट हैड द सेम रैंक इन एनी 2 सब्जेक्ट, तो ऑलरेडी सिक्स्थ पोजीशन पे राहुल और नेहा आ चुके हैं, तो वापस ये 2 पोजीशन पे राहुल और नेहा नहीं आ सकते। फाइन, एंड इफ यू ऑब्जर्व सिक्स्थ पोजीशन में आई और टी भी आपका नहीं आ सकता, आई और टी मतलब ईसा और तरुण, ईसा तरुण कैन नॉट बी ऑक्युपाइंग एनी ऑफ द सिक्स्थ पोजीशन, सो हु इज रिमेनिंग, ओनली कुणाल एंड सिमरन इज रिमेनिंग, ओनली कुणाल एंड सिमरन इज रिमेनिंग, तो केमिस्ट्री में तो कुणाल ऑलरेडी सेकंड पे बैठा हुआ है, तो कुणाल वापस आपका सिक्स में तो आ नहीं सकता है, दैट मींस हियर आई लव सिमरन, हियर आई लव कुणाल। डन विथ माय सिक्स्थ पोजीशन, राइट, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स फोकस ऑन मैथ्स फोर्थ पोजीशन, दिस पोजीशन मैथ्स फोर्थ पोजीशन। व्हाई हैव आई सिलेक्टेड दिस पोजीशन, क्योंकि देखो आउट ऑफ द 6 स्टूडेंट्स already 5 students names are cancelled out for this position. How? ईसा जो है वापस आ नहीं सकती, क्योंकि ईसा इज ऑलरेडी ऑक्युपाइंग फोर्थ पोजीशन इन रायो, तो कैन नॉट बी ऑक्युपाइंग फोर्थ पोजीशन इन एनी ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स, राइट, तो ईसा आ नहीं सकती। तरुण और आपके नीचे जो राहुल हैं वो ऑलरेडी दूसरे पोजीशन पे बैठे हुए हैं मैथ्स में, तो फोर्थ में तो नहीं आ सकते, और फोर्थ में आपके ये जो 2 बंदे हैं कुणाल और सिमरन वो भी नहीं आ सकते, तो बचा कौन, T I R gone, then K and S also cancelled out for that position, तो only person remaining is N, तो यहाँ पे N आ जाएगा which is नेहा, तो here I love नेहा। फाइन, ठीक है। Now if I observe the entire math scenario, entire maths, 3 positions vacant, right, who are the 3 persons remaining, T N R हो गए, so I'm not going to take the names, I'll just take the names of the alphabet now, T N R हो गए, तो बचा क्या, I K S बचा, तो I K S में if you observe 5th पोजीशन में I और K दोनों नहीं आ सकते, that is 5th पोजीशन, it has to be S over here, ठीक है, तो बचे कौन, I और K, तो यहां वापस K तो आ नहीं सकता बिकॉज K is already there in the second position, तो वापस सेकंड पोजीशन पे आ नहीं सकता है, that means this will be I, this will be K, very similar to सुडोकू। सुडोकू आपने कभी किया है ना, बहुत, you'll feel very comfortable with this set, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, ओके, नेक्स्ट वी कैन फोकस ऑन दिस पोजीशन। व्हाई डिड आई चूज दिस पोजीशन, यहां पे देखो आई टी एन कैंसिल हो रखे हैं, टी इस ये ऑलरेडी थर्ड पे है, कैंसिल हो गया, आई और एन कैंसिल हो रखे हैं, नहीं आएंगे इस पोजीशन पे, राइट, और कौन नहीं आएगा, एस और आर भी कैंसिल हो रखे हैं, राइट, थर्ड पोजीशन पे आ नहीं सकते।
That is the only student remaining there, possible there over will be K. सिर्फ K ही आ सकता है वहां पे, ठीक है। अच्छा, KIN हो गए, तो बायोलॉजी में के लिए और कौन कौन बचा? KIN हो गए, तो SRT बचे, राइट, RST बचा हुआ है, तो RST कुछ बोल सकते हैं अभी? हाँ, यहां पे आपका S आएगा नहीं, R और T कुछ भी आ सकता है, RT आएंगे नहीं, नहीं अभी होल्ड करते हैं, नहीं हो जाएगा ना। देखो फर्स्ट पोजीशन देखो, बायोलॉजी फर्स्ट पोजीशन, S तो वापस आएगा नहीं यहां पे, राइट, और T आपका कैंसिल हो रखा है, सो द ओनली स्टूडेंट एलिजिबल नाउ विल बी R ओवर हियर, क्लियर, ठीक है। तो R हो गया, बाकी बचा कौन? S और T बचे, राइट। S यहां पे नहीं आ सकता है, राइट, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी S आपका आ चुका है, तो यहां पे S नहीं आएगा, सो हियर आई हैव T एंड हियर आई हैव S, डन, ओके। तो फर्स्ट फोकस ओनली ऑन द फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे S के R हो गए और TN आ नहीं सकता, राइट, TN आपका आ नहीं सकता है, तो द ओनली स्टूडेंट रिमेनिंग इज I ओवर हियर। अच्छा, सेकेंड पोजीशन पे KIS हो गया, RN आ नहीं सकते, सो द ओनली स्टूडेंट रिमेनिंग इज T ओवर हियर, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, और क्या बचा? फोकस ऑन केमिस्ट्री, IKS हो गया, IKS हो गया, IKS हो गया, मतलब RN और T बचे, RN एंड T, RNT बचा हुआ है, RNT। यहां देखो थर्ड पोजीशन पे T आ नहीं सकता है और R भी नहीं आ सकता है, राइट, तो हियर आई लव N, देन वी आर रिमेनिंग विथ RNT, RNT, T इस पोजीशन पे नहीं आ सकता है क्योंकि यहां पे ऑलरेडी T आ चुका है, गॉट इट, सो हियर आई लव R एंड हियर आई लव T, डन, ठीक है। बस थर्ड पोजीशन में फोकस करो, थर्ड पोजीशन पे NTK आ चुका है, SR आ नहीं सकता है, सो हियर आई लव I, देन फोर्थ पोजीशन पे TNI आ चुका है, KS नहीं आ सकते हैं, सो हियर आई लव R, देन फिफ्थ पोजीशन पे RST आ चुका है, IK नहीं आ सकते, सो हियर आई लव N, एंड दैट कंप्लीट्स योर एंटायर सोल्यूशन, सबका निकल गया, ऑल द रैंक्स एवरीवेयर। जस्ट एक बार क्रॉस चेक कर लो आप, SIKR, व्हाट आई एम क्रॉस चेकिंग की सेम स्टूडेंट कहीं रिपीट तो नहीं हो गया है, TKIS, INTK, RTNI, NRST, KSRN बराबर, फिजिक्स में STI RNK, केमिस्ट्री IKN TRS, मैथ्स KIT NSR, बायोलॉजी RSK ITN, परफेक्ट। सो क्रॉस चेक कर लेना, बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा फिर नेगेटिव हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, जल्दी से क्विक क्रॉस चेक। Okay, question 1. The ranks of how many of the given students can be determined in all the 4 subjects? अच्छा, सबका निकल गया, सारे सब्जेक्ट में, मतलब how many students are there जिनका सारे सब्जेक्ट में रैंक निकल गया हो, सबका निकल गया सारे रैंक्स, तो all the 6 students, the answer will be all the 6 students, ठीक है। Question 2. Who is ranked second in maths? Maths में second rank I, that is Isa. If numerical value of sum of the ranks of a student is lowest, then that student is considered to be the best. अच्छा, next lowest is the second best and so on. Which of the 6 students is the second best student? अच्छा, मुझे सबके रैंक्स का सम का न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक मिनट निकाल लेते हैं। नेहा, राहुल, सिमरन, कुणाल, ईसा एंड तरुण। चलो नेहा का जल्दी से देख लेते हैं। फिजिक्स 5th रैंक, देन केमिस्ट्री वी हैव 3rd रैंक, बायो वी हैव 4th रैंक, देन सॉरी बायो नहीं, मैथ्स वी हैव 4th रैंक एंड बायो वी हैव 6th रैंक। ओके, सो द टोटल इज 5, 3, 8, 4, 12, 6, 18, सो द सम इज 18 ओवर हियर, ठीक है। देन वी हैव राहुल, राहुल का जल्दी से देख लेते हैं, 4th रैंक, then here we have 5th rank, then here we have 6th rank, then bio pe we have 1st rank, okay, so 4, 5, 9, 6, 15, 1, 16, okay, then we have Simran, Simran का देख लेते हैं 1st rank, then here we have 6th rank, then maths में 5th rank और bio में 2nd rank, okay, so 1, 6, 7, 7, 5, 12 to 14, ठीक है। then Kunal we have 6th rank, then chemistry we have 2nd rank, maths we have 1st rank,
and bio we have third rank. 6 to 8, 8 1 9, 9 3 12. Okay, fine. Then we have ISA we have third rank. ठीक है. Then here we have next क्या है ISA का? Third rank, then first rank. Okay. Then second rank in maths and bio में fourth rank. So 4 to 6 4 10. Okay. Then Tarun के लिए we have Tarun second rank plus I think fourth rank next. हाँ, fourth rank. Then third. Then we have fifth. ठीक है. टोटल कितना रहा तरुण का? 2 4 6 3 9 5 14. ओके. तो हमें पूछ रहा है कि सेकेंड बेस्ट, तो सबसे लोएस्ट जो है दैट इज बेस्ट. सो अगर हम रैंकिंग वापस से करें बेस्ड ऑन दिस वैल्यूज, तो ईसा विल बी रैंक्ड 1 ओवरऑल. ठीक है. वाई सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू लोएस्ट में हम बेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो रैंकिंग में क्या होता है, जैसे रैंक 1 इज बेटर रैंक देन रैंक 2, तो रैंकिंग में न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा अगर है तो इट्स अ बेटर रैंक. ठीक है. वैसे ही सारे रैंक्स अगर ऐड कर दें तो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका सबसे छोटा है दैट पर्सन विल बी द बेस्ट. ठीक है. ऑब्वियसली ईसा इज द बेस्ट इफ यू जस्ट ओवरलुक रैंक 1 2 3 4. रैंक 1 2 3 4 किसी भी सब्जेक्ट में रैंक 5 या 6 में वो गई नहीं है. राइट. ठीक है. तो ईसा इज द बेस्ट. सेकंड बेस्ट मतलब सेकंड लोएस्ट जो है दैट इज के में कुणाल. राइट. तो सेकंड बेस्ट इज कुणाल ओवर हियर. ठीक है. तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर आपका कुणाल हो जाएगा, क्योंकि हमें सेकंड बेस्ट स्टूडेंट पूछ रहा है. ठीक है. ओके. देन फोर्थ, रैंक्स अक्रॉस द 4 सब्जेक्ट्स फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. अच्छा, तो यहां पे भी हमें ये रैंक सारे यूज हो जाएंगे. अच्छा, नेहा के जो 4 रैंक्स आए हैं आर दे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स 3 4 5 6? यस. देन राहुल के जो 4 रैंक्स आए हैं आर दे कंसेक्यूटिव? नो. सिमरन के? नो. कुणाल के? नो. ईसा के 1 2 3 4? यस. देन तरुण के 2 3 4 5? यस. तो टोटल 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके रैंक्स जो है वो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, इन केमिस्ट्री हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड वर्स रैंक देन कुणाल बट बेटर रैंक देन राहुल? कुणाल से खराब रैंक है लेकिन राहुल से अच्छा रैंक है. कितने लोग हैं? 2 लोग हैं. ये जो 2 लोग हैं कौन कौन है? एन और टी. तो केमिस्ट्री में 2 ऐसे बंदे हैं जिनका रैंक जो है कुणाल से खराब है लेकिन राहुल से बेहतर है. ठीक है. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड वर्स रैंक देन राहुल बट बेटर वर्स रैंक देन कुणाल बट बेटर रैंक देन राहुल? सो योर आंसर विल बी 2 स्टूडेंट्स ओवर हियर. ठीक है. सो यस, वी आर डन विद द एंटायर सोल्यूशन. सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं. इट वॉज इजी बट हाँ, थोड़ा आपको पेशेंस के साथ सारे डील करना है. कहीं पे ऊपर नीचे हो गया, एक छोटा सा गलती हो गया तो पूरा सोल्यूशन आपका जाएगा. ठीक है. सो अगेन इट्स अ रिमाइंडर, June 21st I'll be conducting a quant based LR session free. Right. I have created a WhatsApp group, so I'll be sharing the details of the class in that group itself. जिनको क्लास करना है, इंटरेस्टेड हैं क्लास के लिए, राइट? इफ यू वांट you can join the group, WhatsApp group. I'll share the WhatsApp group link in the comment section. ठीक है? Okay then. Have a good day. We'll see tomorrow.